Hello friends, how are you? I hope all are fine. Friends, I will not waste much of your time and I will start the class directly. Today I am going to cover the topic direct order on GEM portal. So earlier I was covering the topics which are basic nature on GEM portal. Now I will cover the main procedures and the jobs which we used to do daily on GEM portal. So guys, I will start. Today I am going to cover the topic GEM direct order on GEM portal. Okay, so the topic is GEM direct order on GEM portal. This is the topic which the guys which are working on GEM portal as a buyer or on behalf of buyer are doing daily. So it is a very small topic, that's why I have covered it today. GEM direct order क्या होता है? In GEM direct order, the items which are costing up to 25,000. Okay, up to 25,000 you can buy the items on direct order, GEM direct order. So here I will start the procedure. The procedure is you open the GEM buyer portal. Okay, GEM buyer portal. When you will open the GEM buyer portal, you will get the whole dashboard. Okay, with lot of icons like this, and here you will get this type of search option. So suppose you want to purchase one keyboard, so you will type the keyboard here in that search option. So when you type the keyboard, you will get the, like in Google, when you type you get various options. See, in a similar fashion you will get the keyboard categories, a lot of categories in GEM portal. So the category which is very close and similar to your item, you will select that category and you will, suppose this one is very close to your item, this category, you will click on this category. Okay, then next option you will get, guys watch this video till the end, तभी तुमको समझ में आएगा कि इसको एक्चुअली प्रोसीजर को किया कैसे जाता है. सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट कैटेगरी, you will find this type of page. Okay, with a lot of items with different brands and different rates of different sellers. So you will get lot of like pages भी होंगे 1 2 3 4 5 6. So अपना item which is close to your requirement and अप टू योर अमाउंट, जितना आपको खरीदना है 25,000 तक का, तो उस अमाउंट के जो सबसे नियर बाय जो भी आपका आइटम हो, सपोज योर कीबोर्ड इज यू हैव टू परचेज सपोज 100 कीबोर्ड्स and you have 25,000, तो you divide that 25,000 by 100. ओके, देन एक का जो भी रेट आएगा यहाँ पे आपने चेक करना है, उस एक का रेट, उसके अंदर का जो भी रेट होगा आप पर ईच आइटम का, ईच का रेट जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे. एंड सपोज करो ये है वो रेट जो आपके एक पर आइटम, ईच आइटम का रेट आ रहा है, ठीक है, ईच क्वांटिटी का. तो यू विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइटम. देन व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइटम, you will get the item details of this particular option. and फिर क्या होगा नेक्स्ट पेज में, you will get this type of item का image and यहाँ पे आइटम की डिटेल्स, क्या आइटम का नाम क्या है, नेम, ठीक है, ऊपर यहाँ पे कैटेगरी लिखा होगा, पूरा आइटम की कैटेगरी और कौन सी कैटेगरी में है, Q3 Q4 जो भी है, ठीक है, Q2, ऐसे करके यहाँ पे नाम होगा, उस नाम के नीचे उसका जो भी होगा प्राइस होगा, स्टॉक होगा, कितना स्टॉक है, मिनिमम क्वांटिटी. और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक आएगा ऐड टू कार्ट ऑप्शन. एज दिस इज डायरेक्ट ऑर्डर, यू कैन कार्ट द आइटम डायरेक्टली. तो आप यहाँ पे यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट के नीचे पहले यहाँ पे ऐड टू कार्ट जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा
क्वांटिटी डालने का, ठीक है। क्वांटिटी आप डालेंगे, एडिट कंसाइनी करके ऑप्शन आएगा, एडिट कंसाइनी आएगा। आप एडिट कंसाइनी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंसाइनी है, जो बायर होता है वही कंसाइनी होता है, ठीक है। तो एडिट कंसाइनी पे पहले क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट, उसके बाद हम बताऊंगा वो कैसे करते हैं। एडिट कंसाइनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे एक पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको कंसाइनी नेम डालना है, जो भी आपका बायर नेम है, और यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। सपोज करो 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी डाल देंगे, ठीक है। जैसे आप 100 क्वांटिटी डाल देंगे तो आपको ये यहाँ पे टोटल का रेट दिखा देगा, टोटल रेट यहाँ पे दिखा देगा, जितने पीस आपको लेने हैं टोटल का रेट। देन उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा ऐड टू कार्ट। जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे वो एक उस पर्टिकुलर केस को एक कार्ट में ले जाएगा, एक न्यू कार्ट बना देगा, ठीक है। देन वो नेक्स्ट पेज खुलेगा, आपका आइटम का वो होगा, और कार्टेड आइटम करके, जैसे उसमें कार्ट जो होता है, उसके बाद ये पेज खुलेगा, उसमें क्वांटिटी, टोटल प्राइस, मतलब ये आपका जो है एक आइटम कार्ट हो गई। सो गाइस फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटी सी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी आइटम आप कार्ट करते हो वो 10 डेज के लिए वैलिड होती है, ठीक है। 10 डेज की वैलिडिटी होती है। जेम क्या करता है, उसको फ्रीज कर देता है उस आइटम को, उस पर्टिकुलर बायर के लिए और उस पर्टिकुलर सेलर के उस आइटम को, तो 10 डेज तक वैलिड होता है। अगर आपने 10 दिन के अंदर उसका काट करके उसको आगे कॉन्ट्रैक्ट प्लेस कर दिया तो वेल एंड गुड, और नहीं तो वो काट आउट होगी तो फिर ये सारा प्रोसीजर आपको वापस करना है। तो जैसे ही आप वैलिड ये ऐड टू कार्ट करेंगे तो ऐड टू कार्ट करने के बाद कंटिन्यू आएगा, उसमें फिर आपकी नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर कार्ट का एक डिमांड रेज हो जाएगा, ठीक है। और उस डिमांड के बाद आप जब डिमांड पे जाके एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सारे आइटम्स अपने, जो भी क्वांटिटी है जो भी है, उसके बाद वो आपको ले जाएगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले पेज पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस पेज पे ले जाएगा, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट वाले पेज में क्या क्या होगा, आपका पेइंग एजेंसी का नाम होगा, ठीक है। पेइंग एजेंसी का नाम होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो ऑप्शन होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डाल दिया, उसके बाद IFA केस तो है नहीं, पूछेगा वो उसमें कि IFA है कि नहीं है, इसमें कंकरेंस है कि नहीं, तो उसमें नो कर देना है। और एक दो और ऑप्शंस होते हैं कि GST इनवॉइस किसके नाम पे रेज होनी है, वो बायर के नाम पे कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट में जाके आपका प्रोसेस ऑर्डर, जैसे ये सारा भर दिया, उसके बाद प्रोसीड करके आएगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड से पहले जस्ट आपको एक अटैचमेंट मांगेगा, उसमें आपने जो उस अप्रूवल, जो आइटम खरीद रहे हैं उसका जो अप्रूवल दिया है जिस भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल अटैच करना है उसमें। अप्रूवल अटैच करके प्रोसीड करेंगे, आगे जाके सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही वहाँ पे आपका एक OTP आएगा, ठीक है, वेरीफाई विद OTP ऑप्शन आएगा। और चलिए मैं बता ही देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आएगा वेरीफाई विद OTP, वेरीफाई विद OTP ऑप्शन आएगा उसके बाद। और वेरीफाई विद OTP के बाद जो बायर के जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, आप वो OTP इसमें डालेंगे, ठीक है। OTP डाल देंगे जैसे ही, और OTP डालते ही आपका सबमिट करेंगे, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें पूरी डिटेल्स के साथ सबसे नीचे आपका देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा आइकॉन आ जाएगा, सैंक्शन का आइकॉन आ जाएगा, और फाइनेंशियल अप्रूवल जो आपने अटैच किया है वो, ये 3 चीज़ें आपके उस पेज पे आ जाएंगी। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करिए, इसका प्रिंट आउट लीजिए, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्लेस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये है तरीका डायरेक्ट ऑर्डर को प्लेस करने का। इस वीडियो को जो बिगिनर्स हैं वो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो चीज़ है ये डेली एक बेसिक चीज़ है जो हम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था डायरेक्ट ऑर्डर, जम कंपैरिजन अप टू 5 लाख एंड बिड्स, यही 3 होती हैं। तो ये डायरेक्ट ऑर्डर का जो है, ऐसे डायरेक्ट ऑर्डर को करते हैं, जेम पोर्टल पे कॉन्टैक्ट प्लेस करते हैं। और दोस्तों ये तो हो गया चलो अपनी जेम क्लासेस। और मैं एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी मेरा ये वीडियो देखते हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, और जो भी उनको जानते हैं, प्लीज़ इस मैसेज को हो सके तो, ये ऐसा एक रिक्वेस्ट ही है, हो सके तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के आगे अपने बच्चों को भी बताइएगा कि देखिए हम लाइफ में ना सब कुछ करते हैं, हर चीज़ एंजॉय करते हैं, लेकिन उस
पर्टिकुलर इन्जॉयमेंट में ना हमें दो चीज़ें नहीं बोलनी है, वो चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी है कि हमारी रूट्स क्या हैं और हमारा देश क्या है। तो उसको जानने के लिए दोस्तों मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हम फालतू की मूवीज़ तो बहुत देखते हैं, कोई इशू मैं भी देखता हूँ, पर दोस्तों कभी कभी ना हमें एक डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमें अपनी पसंद के साथ कोई ऐसी चीज़ें भी करनी हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छी हो। तो उसी उसी एक तर्ज पे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ना आप देशभक्ति वाली मूवीज़ दिखाइए, और जिसमें हमारा जो है अच्छी चीज़ें बच्चे सीखें और उनको मोटिवेशन मिले, क्योंकि यही हमारा यूथ है जो कल को हमारे देश को इन्होंने ही चलाना है। तो आप देशभक्ति वाली मूवीज़ दिखाइए, जैसे अभी आर्टिकल 370 भी आई थी, वो भी एक अच्छी मूवी है। और कल दोस्तों मैंने बस्तर मूवी देखी थी, बस्तर मूवी भी नक्सलाइट्स पे है, और हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे जो जवान हैं किस स्थिति में काम कर रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, क्या उनकी साइक है, क्या प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, हमारी जनरेशन्स को पता होना चाहिए, जो जनरेशन चली गई, जो जवान चले गए, जो शहीद हुए, उनका भी पता होना चाहिए, और जो अभी राइट नाउ जो जिस प्रॉब्लम्स में रह के हमारे देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जो अपना बलिदान दे रहे हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही हमें अपनी संस्कृति का भी पता होना चाहिए। तो इसलिए उनको उस तरह की मूवीज़, उस तरह की चीज़ें सिखाइए जिसमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो मैसेज देती है मूवी, जो अपने देश को जानने के लिए मैसेज देती है, वो मूवीज़ ज़रूर दिखाइए उनको। बाकी मूवीज़ भी दिखाइए, मैं नहीं कहता एंटरटेनमेंट में तो सब कुछ आता है, बट वो चीज़ ज़रूर दिखाइए कि आज अपने आप बच्चों को दिमाग में देशभक्ति का जज्बा डालेंगे, और अपने अपने धर्म के बारे में, अगर कोई भी धर्म, मैं ये नहीं बोलता सिर्फ हिंदू धर्म, में सभी धर्मों को मानता हूँ, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो और ईसाई धर्म हो, अपने धर्म के बारे में उनको ज़रूर नॉलेज दीजिएगा। हाँ बस दोस्तों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।